Hello students, very good evening. How are you? I think all are fine. Okay. As you know, already started the class 10 science part of the chemistry and cover the many topics and many chapters like chapter number 1 and chapter number 2 is completed. If you want watch the videos, you check the playlist and watch the all videos. If you have any doubt, post the comment in the comment box, or you can join with my Telegram channel and get the PDF notes. If you want to WhatsApp number, I will give you. Firstly, you comment it, okay, in comment box. This is the my ID, all ID, Science Sandeep. This ID will search in YouTube search bar. My channel will become. This same ID will search in the Instagram, Telegram. ID will become and you can join it. What is the benefit of the Instagram? What I am making the videos about the topics, all topics convert into the real form, okay, and it is benefit for you that if you want to revise it, you can revise your all topic in the form of the reels. So join the Instagram, okay, and Telegram benefit is the where you will find the PDF notes, okay. So you can join both Telegram and Instagram. This is beneficial for you, okay students, and this is the ID, okay. And all videos share with your friends and subscribe the channels, okay, because this is the new channel, so I am requesting all of you subscribe the channel, okay. Let's start today topic. Today topic is the student the reactivity series. One topic in your NCERT have how do metals react with the solution of other metal salts. This is the one topic in your NCERT book, okay. In this topic have one subtopic, the reactivity series. What is the reactivity series, students? What is the reactivity series? Firstly, you listen me carefully. What is this? Already discussed many type of we already discussed the many type of the metals, non-metals, okay. As you know, many metals have the less reactive and many metals are a strong reactive. Less reactive, a strong reactive means what? Okay students, क्या है less reactive and a strong reactive क्या है? A strong reactive metal, that means this metal is do the fast reaction to the any other substance or any other metals or non-metal, okay. And less reactive, that means this metal is slow reactive, okay. And a strong reactive, that means it will be fast reactive with the any other metal or non metal, okay students. हिंदी में सुन लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब कोई मेटल बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, यानी कि ऊपर में रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर आता है, तो ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा कहीं भी किसी भी मेटल से, या किसी भी जगह पर उसको छोड़ देते हो तो उसको फास्ट रिएक्ट करेगा। स्लो जिसका जैसे कि स्लो रिएक्टिव में आएगा तो धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। जैसे मैंने आपको सोडियम पोटेशियम बताया था, एक लास्ट वीडियो जो देखेंगे तो मिलेगा। सोडियम पोटेशियम कैसा मेटल है? काफी सॉफ्ट मेटल है, इसे चाकू से काट सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल इज द वेरी सॉफ्ट मेटल, यू कैन कट विद द नाइफ, ओके, एंड इट इज द वेरी फास्ट रिएक्टिव। ये काफ़ी फास्ट रिएक्ट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम कहीं पर भी रख दोगे, इसको बाहर नहीं रख सकते इन्वायरमेंट में, तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे, ओके। इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, सोडियम पोटेशियम को, लिथियम को, क्योंकि काफ़ी फास्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो ये हो गया फास्ट रिएक्टिव। जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दिस इज द वेरी लेस रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, सभी जगह रिएक्ट नहीं करते हैं। ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। कैसे? तो आइए एक थोड़ा सा लिख देते हैं। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो कम रिएक्टिव है उसको ज्यादा रिएक्टिव वाला क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। कहां से? फ्रॉम दियर कंपाउंड, किसी कंपाउंड में से या किसी सॉल्यूशन में से। कोई रिएक्टिव मेटल है तो कोई कंपाउंड में लेस रिएक्टिव है, उसको क्या करेगा? हटा देगा वहां से, अपने खुद चला जाएगा।
ये मैं बोल रहा हूँ। कैसे, मैं एग्जाम्पल द्वारा समझाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट टाइप का दे रहा हूँ, आई एम राइटिंग हियर मेटल ए एंड प्लस मेटल बी इन सॉल्यूशन। मेटल ए, दो मेटल मैं ले रहा हूँ ए और बी, एक मेटल ए ऐसे ही है और एक मेटल बी जो है कि इसमें है सॉल्यूशन में है। मेटल बी, मेटल यहाँ पे मैं मेटल बी सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन या सॉल्यूशन लिख लीजिए, सॉल्यूशन सॉल्ट लिख लीजिए यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूशन इन सॉल्ट या ऐसे ही रहने दीजिए। ये रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये समझ लीजिए ए क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो इस सॉल्यूशन में बी मेटल है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो क्या होगा, यहाँ से ए वाला क्या करेगा, इसको हटा देगा, बाहर हटा देगा, ठीक है, अपने खुद चला जाएगा सॉल्यूशन में। कैसे हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा विथ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और बी को क्या कर देगा, बाहर, ठीक है। ए कहने का मतलब हुआ जो फास्ट होगा वो सॉल्यूशन में जुड़ जाएगा और उसको सॉल्यूशन से हटा देगा, कहेगा तुम जाओ, बाहर जाओ, तुम्हारा काम हो गया है ना, तुम्हारे बस का नहीं है इसके साथ रहना, है ना, ज़्यादा तेज है तो बोलेगा हम सॉल्यूशन के साथ रहेंगे, तुम बाहर जाओ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिएक्टिविटी, दैट मीन्स द रिएक्टिविटी। कैसे रिएक्टिविटी होता है, क्या होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज। अब देखिए आप कैसे जानेंगे कौन मेटल रिएक्टिव है कौन मेटल नहीं रिएक्टिव है, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज आता है, उसको आपको याद रखना चाहिए। कैसे, मैं याद करने का तरीका बता दूंगा। फर्स्ट आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो यहाँ देखिए याद करेंगे, मैं एक बार बताया भी था शायद। पोटेशियम मैं कैसे याद करना है मैं बता दूंगा। देखिए के मैं कैसे याद किया हूँ, KnCm, ओके, KnCm ऐसे याद किया हूँ। KnCm में याद किया मतलब के से क्या लिख दिया मैंने, पोटेशियम, के से क्या लिखा, दिस इज द पोटेशियम, सोडियम, दिस इज द सोडियम, ओके, दिस इज द कैल्शियम, this is the magnesium, okay, and also have the many. Let's see here, KnCm and after that first letter L and last letter Zn, that means aluminium, दिस इज द जिंक। कैसे मैंने याद किया, KnCm इतना क्या याद कर लिया, KnCm करके याद कर लिया, और दो इसको क्या कैसे याद कर लिया आप, फर्स्ट लेटर ए और ABCD का फर्स्ट लेटर ए हो गया और लास्ट लेटर जे हो गया। ए से एल्युमिनियम याद कर लीजिएगा और Zn से आप लोग क्या याद कर लेंगे, जिंक को याद कर लेंगे, ऐसे याद करना है। और भी है, और कैसे याद करेंगे, आगे वाला इसके याद करेंगे ऐसे, लोहा सीसा, लोहा सीसा करके याद रख लीजिएगा। ये क्या है, आयरन, और ये क्या है आपका लेड है, लेड मतलब क्या होता है, सीसा। और उसके बाद इतना याद करने के बाद यहाँ पे समझिएगा हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लीजिएगा, हाइड्रोजन हो गया। और कुछ है, हाइड्रोजन के बाद आपके आते हैं कौन से, कॉपर, याद करना है आपको कॉपर। कॉपर के बाद आ जाते हैं आपके मरकरी, Hg जिसको बोलते हैं मरकरी, फिर आ जाएगा आपका सिल्वर, फिर आ जाएगा आपका गोल्ड, फिर आ जाएगा आपका प्लेटिनम, ऐसे हो जाता है। बस इतना याद कीजिए, इतना एनसीईआरटी में आपको दिया है, और जरूरी होगा तो मैं लिखवा दूंगा कभी। देखिए सबसे पहले मैंने क्या याद किया, KnCm, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर लास्ट फर्स्ट और लास्ट लेटर अल्फाबेट का फर्स्ट और लास्ट लेटर से हो गया एल्युमिनियम और जिंक। फिर आप ऐसे याद कर लेंगे, सीसा, लोहा सीसा हो गया दो, फिर आपका हाइड्रोजन याद हो जाएगा, फिर आपका कॉपर और मरकरी, फिर आपका सोना, चांदी, सोना, ऐसे याद कर लीजिएगा। ए रिएक्टिव सीरीज ऐसे याद कर लीजिएगा। अब इसमें क्या आपको देखना है, देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा ये सीरीज जो है यहाँ से आएंगे ऊपर से नीचे,
तो सबसे ऊपर क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाले सबसे क्या है, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव। जो नीचे आएंगे रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये ऊपर वाले जितने पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम रिएक्टिव है, सोडियम से कम कैल्शियम रिएक्टिव है, यानी कैल्शियम कम रिएक्टिव है और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है ना, ऐसा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव, ये सब क्या है, डिक्रीज होंगे, धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, है ना, ये डिक्रीज होंगे, क्या होंगे, डिक्रीजेज रिएक्टिविटी। आफ्टर दैट लीस्ट रिएक्टिव, आफ्टर दैट लीस्ट रिएक्टिव। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए इतना समझ में आ गया आपको। अब मैंने आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कॉपर हो गया और ये आपका क्या हो गया, HCl हो गया। दिस इज द कॉपर एंड दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज द कॉपर और दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू थिंक क्या ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं? नहीं रिएक्ट करेंगे। क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे? देखिए मैंने क्या बोला वहाँ पे, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है, एक सॉल्यूशन है किसका, एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये आपका सिंगल क्या है, एक मेटल है कॉपर। तो ये रिएक्ट कब करेंगे, जब ये कॉपर जो है इसको हटाएगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा, तभी तो कॉपर और क्लोरीन आपस में मिलेंगे। हटाएगा तभी ना, लेकिन कब हटाएगा, जब इसके पास हटाने का क्षमता होगा तभी ना, ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी ना। किससे, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी ना हाइड्रोजन को हटाएगा। हाइड्रोजन बहुत तेज है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, तो उसको कॉपर नहीं हटा पाएगा। यदि हाइड्रोजन जो है लेस रिएक्टिव होता तो ये हटा देता। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, और कॉपर कहाँ है, इसके नीचे है। यानी कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। जब हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर जो है इसको हटाएगा नहीं, यहाँ से भगा नहीं सकता है, क्योंकि बहुत तेज है, बहुत रिएक्टिव है ना, बहुत रिएक्टिव है तो खुद ही पकड़ रखा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको हटा नहीं पाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल से देख लीजिए किसको हटाता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक ले लीजिए कैल्शियम प्लस H2SO4 ले लीजिए, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे रिएक्शंस कराए हैं। अब ये रिएक्शन देखिए, कैल्शियम कहाँ है, यहाँ पे कैल्शियम कहाँ है, यहाँ पे है। कैल्शियम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। देखिए कैल्शियम यहाँ पे ए क्या है, मैं बता रहा हूँ ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इससे कम है थोड़ा, इससे कम ए है, इससे कम ए है, इससे कम ए है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे आ रहा है धीरे धीरे घटते घटते जा रहा है। जो है यहाँ पे सोना जो है सबसे कम रिएक्टिव है ना। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव। समझ रहे हो कि नहीं, कैल्शियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। जब कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन कैसे हटाएगा, हाँ हटा देगा, और क्या बना लेगा, खुद जो हाइड्रोजन का जगह पर जाएगा और कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, और इसको बोलेगा तुम यहाँ से हटो, हम तुमसे ज्यादा तेज हैं, तुम हमसे कम तेज हो, हम ज्यादा तेज हैं, हम फास्ट है तुमसे, ज्यादा रिएक्टिव है, तुमको हम हटाएंगे, हटा दिया और उधर भगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होगा। ऐसे होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे रिएक्शन नहीं होने के। जैसे कि आप यहाँ पे ले लेते, एक और एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ Ag सोना, और यहाँ पे ले रहा हूँ सोना को किस में डाल दिया, हम H2SO4 में डाल दिया, रिएक्शन होगा। सोना क्या है, सॉरी ये क्या है, सिल्वर है, सोना नहीं है। Ag क्या है, सिल्वर है, सिल्वर कम रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन कहाँ है, वहाँ पे हाइड्रोजन, वहाँ से यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना है ना, तो हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो सोल्यूशन में ऑलरेडी इसको पकड़े हुए है, हटेगा नहीं, इनसे नहीं हटेगा, क्योंकि ये Ag बोलेगा कि हट, बोलेगा नहीं हम ज्यादा रिएक्टिव, हम नहीं हटेंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी आप सिल्वर को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो नहीं गलेगा,
गोल्ड को डालोगे तो नहीं गलेगा। इसे क्यों, कैसे गलेगा ये मैं बता दे रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देख लीजिए, इसके नीचे आप प्लेटिनम भी लिख सकते हैं, पीटी जो है गोल्ड से भी कम रिएक्टिव है प्लेटिनम, काफ़ी जो है कॉस्टली आपका क्या है वो मेटल है, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसे मिटाते हैं, इधर वाला एग्जाम्पल मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो लिख लीजिए। चलिए एक बात मैं आपको बता दूं, एक आप लोग सुने होंगे एक्वारेजिया, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सुने होंगे एक्वारेजिया, एक्वारेजिया आप लोग सुने हैं, एक्वारेजिया सुने, यहाँ पे ई लिखेगा है ना, एक्वारेजिया सुने हैं। एक्वारेजिया मैं क्या बोला, किसी भी HCl में H2SO4 एसिड में केवल गोल्ड को डालोगे, प्लेटिनम डालोगे तो वो नहीं करेगा। लेकिन आप यदि सुनिए HCl 3 रेशियो और HNO3 1 रेशियो में मिला दिए तो ये बन जाएगा क्या, एक्वारेजिया बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, एक्वारेजिया बन जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन बनेगा एक्वारेजिया, ये HCl 3 पार्ट मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एक्वारेजिया बन जाएगा, एक्वारेजिया। When you will mix 3 part of the HCl, 3 ratio of HCl, 1 ratio of the HNO3, it will be formed aquaresia and it is dissolved. Aquaresia will be dissolved the gold. ओके, ये गोल्ड को भी गला देगा, ये दोनों को ऐसे मिलाने के बाद, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्वारेजिया। ओके, समझ में आया। when you will be take 3 ratio of HCl, that means hydrochloric acid, and nitric acid, that means HNO3 1 ratio, and you will be mix, then will be formed aquaresia, it will be dissolve the gold. Okay, this is the done. ये टॉपिक हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक आपका धन्यवाद।